गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है रेन ऑन द रूफ। ठीक है, दिस पोएम इज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम इन योर syllabus. So the central idea of this poem is that the poem Rain on the Roof reveals the healing power of nature. Okay, it is revealing the healing power of nature. The poet feels that if we listen to the raindrops, we feel happy, or we feel what you can say, we feel bliss while listening to the sound of rain. The poet here, the poet is lying on the bed, okay, and listening to the raindrops, and he is feeling bliss, he is feeling happy, he is you can say बहुत खुश है वो basically. Then the tinkle of the rain brings dreamy fancies. Whenever the drop of rain is drop of the rain is touching the poet's skin, he feels he's dreaming fancies. Basically, he's remembering his childhood, his refreshing his memories, he's refreshing the memories of his mother basically. Okay, so let's start. When the humid shadows hover over all the starry spheres, means humid shadows, it's written here, wet clouds. Hover means ऊपर, floating above, and starry spheres, group of stars in the sky, है ना. Basically he's saying that when the wet clouds means the clouds which has water in it is hovering, is floating above the sky. Basically he said the meaning of this line is that now the rain is going to happen, is clouds are going to rain basically. Over all the starry spheres, जो clouds हैं, they are floating and covering the stars which are present in the sky. Okay, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. Basically क्या चीज़ है ये? melancholy is he said, मतलब सैडनेस, और जो वो बोल रहा है कि जो भी डार्कनेस में सैडनेस है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और जो आंसू हैं, मतलब जो टेयर्स हैं रेन के, उसमें वो ख़त्म हो रही है, वीप हो रही है. ठीक है, ख़त्म हो रही है उस चीज़ को. वॉट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड. means it means that the poet is enjoying his bed, that he's lying on the bed and he's really enjoying lying on the bed. His bed is in cottage chamber, and lie listening to the patter of the soft rain overhead, and he's really enjoying it, and he loves what he loves, that the pressing pillow on his forehead or on his head, he loves
this thing, and he's doing this while he's listening to the sound of rain which is coming from the sky and hitting the roof. He's literally enjoying that sound of rain. Basically, in this stanza it is written that जो क्लाउड्स हैं वो स्काई में घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं बेसिकली, और जो स्टार्स हैं उसको कवर कर रहे हैं. नाउ जब वेट क्लाउड्स आ रहे हैं तो बेसिकली अब क्या होने वाला है, अब बारिश होने वाली है, ठीक है ना. और जो भी सैडनेस है वो कैसे ख़त्म होगी, जब रेन जो है, वो जो बरसात है वो आएगी, ठीक है ना. बरसात जैसे जैसे सैडनेस और डार्कनेस बढ़ेगी वैसे वैसे बारिश आएगी और उससे सब ख़त्म हो जाएगा. मतलब सैडनेस है ना, वो ख़त्म हो जाएगी. क्यों? क्योंकि जो पोएट है हमारा वो उसको बहुत अच्छा लगता है ये बरसात का टाइम, और जो साउंड होता है रेन का वो बहुत अच्छा लगता है उसको, और वो बहुत खुश होता है कि जब भी बारिश होती है तो वो अपना सर पिलो के ऊपर या फिर नीचे डाल के आराम से लेटता रहता है और वो सुनता रहता है. उससे बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है उस पोएट को, ठीक है ना. और वो अपने बिस्तर पे पड़ा हुआ है और मतलब लेटा हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है. कॉटेज में है उसका बेड, और वो बहुत ही लेटे लेटे जो बरसात की जो बूंदें गिर रही हैं रूफ़ पे उसको सुन रहा है और बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा है उस चीज़ को, ठीक है. फिर देखिए एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन एको इन द हार्ट. मतलब उसका मतलब क्या हुआ, देखिए. टिंकल मतलब स्ट्रॉन्ग लाइट, रिंगिंग साउंड, मतलब टन टन की आवाज़ जो आती है ना, दैट इज़ टिंकल. एंड शिंगल्स मीन्स कि जो रेक्टेंगुलर टाइल्स जो होती हैं रूफ़ पे जो लगी हुई होती है ना, टाइल्स जो हैं रेक्टेंगुलर, उसे हम शिंगल्स बोलते हैं, ठीक है ना. एको मतलब जो हम आवाज़ लगाते हैं और वापस से जो रिवर्ट बैक आती है, दैट इज़ एको, ठीक है. तो बोल रहा है कि एवरी टिंगल ऑन द शिंगल, जब जो रेन है वो टाइल्स पे गिरती है तो टन की आवाज़ आती, और वो जो साउंड एको होके उसके हार्ट में वापस से आता है तो वो बहुत ही उसको खुशी देता है. और उससे क्या होता है, उसके जो बहुत सारी जो ड्रीम्स हैं, जो सोचता था पहले, ड्रीम करता था, वो वापस से रिकॉल्स हो रही हैं वो सारी चीज़ें उसको. एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. मतलब इसका मतलब हुआ कि जो उसका जो हार्ट था वो कहाँ बिजी था, अपनी इमेजिनेशन कर रहा था. हार्ट जो बहुत सोच रहा था, इमेजिन ही कर रहा था चीज़ों को, उसमें बिजी था ठीक है ना. और जो आवाज़ आ रही थी रेन की वो उसको और ज़्यादा हेल्प कर रही थी कि वो और फैंसी करे और ड्रीम करे, ठीक है ना. एंड 1,000 रिकलेक्शन वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ. मतलब और जो चीज़ें हो रही थी, मतलब ये सब चीज़ें और स्टार्ट कर रही थी उसके कि भाई और ज़्यादा वो इमेजिन कर रहा था इन सब चीज़ों को, रिकलेक्ट कर रहा था चीज़ों को, ठीक है ना. और जो चीज़ें आ रही थी उसके दिमाग में, वो जो भी वो सोच रहा था उसी से ही वो घिर गया था. अपनी ड्रीम से, अपनी इमेजिनेशन से ही वो उन्हीं में बिज़ी हो गया था, खो गया था. और ये जो जब तक उसका साउंड आ रहा था वो कुछ ना कुछ इमेजिन करे जा रहा था, बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करे जा रहा था. और जैसे ही वो लिसन कर सुनता था
मतलब रूफ पे जो क्या कहते हैं, बारिश का साउंड आ रहा था उसको सुन रहा था और बहुत ही उसको चीज़ें अच्छी लग रही थी।